یہ کل کا کھولا ہے انہوں نے. ناظرین آداب، 11 بجے کی بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہینا. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. شمال مشرقی 4 ریاستوں کے 6 لوک سبھا حلقوں میں پولنگ جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات. نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد بڑودہ سے داخل کریں گے پرچہ نامزدگی. دہلی میں انتخاب سے ایک دن قبل آشوتوش نے کپل سبل پر لگایا رقم تقسیم کرنے کا الزام. سبل نے دی قانونی چارہ جوئی کی دھمکی. کرگل جنگ کے حوالے سے اعظم خان کے متنازع بیان کی نکتہ چینی. دانشوروں نے کہا مذہبی بنیاد پر تقسیم غیر مناسب. اور ای ٹی وی کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ. حیدرآباد کی راموجی فلم سٹی میں ای ٹی وی 3 کیا گیا لانچ. تلنگانہ عوام کی نمائندگی کا مقصد. ہیڈ لائنز کے بعد خبروں کی تفصیل. لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت شمال مشرق کی 4 ریاستوں کے 6 لوک سبھا حلقوں میں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. ناگالینڈ اور منی پور میں ایک ایک سیٹ، اروناچل پردیش اور میگھالیہ میں 2 نشستوں کے لیے آج رائے دہی جاری ہے. اروناچل پردیش میں لوک سبھا انتخابات کے ساتھ 49 اسمبلی حلقوں میں بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. میگھالیہ کی ٹورا سیٹ سے سابق لوک سبھا اسپیکر پی ایس سنگما انتخاب لڑ رہے ہیں، جبکہ مملکتی وزیر برائے اقلیتی امور نینونگ ایرنگ اروناچل ایسٹ لوک سبھا سیٹ سے انتخابی میدان میں ہے. لیکن میرا دیکھیے بارش تو ہو رہا ہے، اس لیے میں تھوڑا یہ برانڈا میں لگا کے رکھا ہوں ٹرین میں. بی جے پی کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی اب سے کچھ ہی دیر بعد بڑودہ سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے والے ہیں. ذرائع کے مطابق پرچہ نامزدگی داخل کرتے وقت پارٹی صدر راجناتھ سنگھ اور سینئر لیڈر بشمول ایل کے اڈوانی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. قابل غور بات ہے کہ اڈوانی کے پرچہ نامزدگی داخلے کے وقت مودی بھی ان کے ہمراہ تھے. بڑودہ میں مودی کا مقابلہ کانگریس کے سینئر لیڈر مدھوسودن مستری سے ہے. عام آدمی پارٹی کے چاندنی چوک پارلیمانی حلقے سے امیدوار آشوتوش نے چاندنی چوک سے کانگریس امیدوار کپل سبل پر ووٹ کے لیے نوٹ تقسیم کرنے کا الزام لگایا ہے. آشوتوش نے الیکشن کمیشن سے سبل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. قریب 2-2:30 بجے کے آس پاس میری پتنی چاندنی چوک کے علاقے میں تھی اور وہ بہت چپے کیمپیننگ کر رہی ہیں، بہت ہائی پروفائل طریقے سے کر رہی ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے کپل سبل کے لوگ جو ہے پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، پیکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. اس نے آج صبح مجھے بتایا اور اس کو سننے کے بعد میں بڑا حیران اور پریشان رہ گیا کہ کپل سبل جیسا آدمی جو کیبنٹ منسٹر اگر اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چناؤ ہار رہے ہیں، وہ اپنی ضمانت بچانے میں بہت بڑی بات ہوگی. لیکن
जिस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र को एक कलंक है। और मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि जो लोग पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इसे इमीडिएटली इंटरव्यू करे, जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कपिल सिब्बल का नॉमिनेशन कैंसिल किया जाए। साथ ही साथ मैं सोनिया गांधी से भी अपील करना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल जैसे लोग, ये लोग भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, इनको पार्टी से फौरन एक्सपेल किया जाए। उधर मरकजी वजीर कानून व चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल ने आम आदमी पार्टी लीडर आशुतोष के तमाम इल्जामात को सिरे से ही खारिज कर दिया है। सिब्बल ने आशुतोष के खिलाफ कानूनी चाराजोई की बात तक कही है। करें, कोई सबूत दे, हम तो उनको केवल उनके खिलाफ मानहानि का ही मुकदमा नहीं करेंगे, हम उनको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। जब जनता का समर्थन किसी पे उठ जाता है ना, तो फिर और कोई चारा नहीं रहता, तो फिर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। तो मैं आशुतोष जी को कहूंगा कि आप नए आए हो राजनीति में, जरा सोच समझ से बात करना चाहिए। राजनीति में ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मेरी जनता मुझे जानती है, मेरे वकील लोग मेरे जानते हैं, मेरे सांसद लोग जानते हैं, वो हिंदुस्तान जानता है। उनको मालूम है कि दागी कौन है और बेदाग कौन है। और आरोप से राजनीति नहीं चलती, और शालीनता से काम होना चाहिए, समझदारी के साथ काम होना चाहिए। और जो नए लोग हैं आज राजनीति में आए हैं, उनको भी थोड़े वक्त लगेगा इस बात को समझने का, और मैं अपेक्षा करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता आशुतोष की ये बात समझ जाए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 7 आला ओहदेदारों के तबादले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन ये भी कहा है कि इलेक्शन के बाद मुतालिका ओहदेदार दोबारा अपनी अपनी जगहों पर बहाल कर दिए जाएंगे। इस मामले पर ममता और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ठन गई थी। कमीशन ने ममता को तबादलों के लिए अल्टीमेटम तक दे दिया था। इलेक्शन कमीशन और ममता बनर्जी के दरमियान तसादुम वक्ती तौर पर थम गया। चार जानिब से दबाव पड़ने के बाद ममता बनर्जी ने 7 आला ओहदेदारों के तबादले करने पर रजामंदी जाहिर की है। साथ ही साथ वज़ीर आला ने यह भी वाज़ेह किया है कि इंतखाबात की तकमील के बाद 7 आला ओहदेदारों को दोबारा उन्हीं ओहदों पर बहाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अल्टीमेटम के बाद गुज़िश्ता शाम ममता ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। बताया जाता है कि इस मीटिंग में ममता ने करीबी मावनीन को तलब किया था। मीटिंग के बाद ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इलाकाई जमातों के साथ सौतेला सलूक कर रहा है। ममता ने इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस की ईमा पर काम करने का इल्जाम आयद किया। तृणमूल सरबराह ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी धमकी दी है। ममता ने इलेक्शन कमीशन पर सियासी दबाव में काम करने का इल्जाम आयद किया। तृणमूल लीडर डेरिक ओब्रायन ने बताया कि वज़ीर आला बनर्जी इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करने वाली हैं, जिसमें रियासत के लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 7 आला अफसरों के तबादले के लिए ममता को बुध की सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया था, जिसके बाद ममता को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। इससे कबल ममता ने कहा था कि वो जेल जाना पसंद करेंगी, लेकिन 7 अफसरान का तबादला नहीं करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बीजेपी सरबराह राजनाथ सिंह ने एमएनएस सरबराह राज ठाकरे का मजाक उड़ाया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना में पुराना इत्तेहाद है और वो मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। राजनाथ सिंह ने एमएनएस सरबराह राज ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि कई जमातें गैर मतलूबा तौर पर नरेंद्र मोदी की हिमायत का ऐलान कर रही हैं। राजनाथ ने मजीद कहा कि ऐसे गैर मतलूबा हिमायत की बीजेपी को जरूरत नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र भाई मोदी को हम समर्थन देंगे। अरे भाई काहे हम बिना मांगे समर्थन आप परेशान हैं? यदि किसी को समर्थन देना है, या तो हम भारतीय जनता पार्टी का एलआई बन जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, या तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो अपने को विलीन कर दे, वही यह दावा कर रहे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और यूपी के काबीनी वजीर आजम खान ने एक और मुतनाज़ बयान दे दिया है। गाजियाबाद को मसूरी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आजम खान ने दावा कर डाला कि करगिल की पहाड़ियों पर हिंदुस्तान का परचम लहराने वाले फौजी मुसलमान थे। और मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूं कि हमें दिल से लगाओ, हमसे प्यार करो, हमसे मोहब्बत करो। इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि
उधर मारूफ सहाफी और सियासतदान शाहिद सिद्दीकी ने आजम खान के इस बयान की तरदीद की है जिसमें आजम खान ने कहा था कि करगिल जंग मुसलमान फौजियों ने जीती थी। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि फौज में सिर्फ 2% मुस्लिम फौजी हैं, लेकिन करगिल जंग में शहीद फौजियों में 8% मुसलमान फौजी थे। मगर आजम खान का बयान फौज में मजहबी बुनियाद पर तफरीक पैदा करने वाला है, जो कि मुल्क के लिए और खासतौर से मुसलमानों के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क पर जब भी आफत आती है मुसलमान जान की कुर्बानी देने में हमेशा से पेश रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान की तफरीक करना नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। उधर आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी आजम खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने फौज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। ताहम खालिद रशीद फिरंगी महली ने फौज में मुसलमानों की आबादी के तनासब तकर्रुरी को मुमकिन बनाने की भी अपील की है। खान साहब का कहने का तरीका बिल्कुल गलत है। आप फौज को हिंदू मुसलमान में बांटोगे तो इससे देश का भी नुकसान होगा, फौज का भी नुकसान होगा, सबसे बड़ा मुसलमानों का नुकसान होगा। हाँ, यह सच्चाई है कि जब जब देश पे आफत आई है, चाहे 65 की जंग हो, चाहे कारगिल की जंग हो, मुसलमान किससे पीछे नहीं रहा। हवलदार अब्दुल हमीद से लेकर कारगिल तक मुसलमान शहीद हुए हैं देश की सुरक्षा के लिए, और कारगिल में मरने वालों में 8% मुसलमान थे शहीद होने वालों में, जबकि फौज के अंदर 2-3% मुसलमान हैं। तो कहने का मतलब यह है हमारा कि मुसलमान जो है जितना फौज में है उससे कई गुना ज्यादा शहीद होने वालों में। आजम खान ये बात कहते तो सब इसको प्रशंसा करते, लेकिन ये कहना कि मुसलमानों ने ये काम किया, मैं समझता हूं ये बड़ा अफसोसनाक है, गलत है। मैं इसका खंडन करता हूं, और इस तरह की बात करके फौज को हिंदू मुसलमान में बांटना जो है देश के लिए गलत है। जितनी भी जंग हुई है, चाहे कारगिल वॉर हो या कोई और दूसरी वॉर, उसमें आर्मी के तमाम जवानों ने पूरी जाबाजी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया है। कि आर्मी में मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी गई हैं, उसमें इजाफा होना चाहिए। और उसमें ये भी हकीकत है कि अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, लेकिन जब कोई वॉर होती है तो वॉर में तमाम आर्मी में तमाम जवान एक हिंदुस्तानी की हैसियत से दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, और हम ये समझते हैं कि यही हमारी आर्मी की खूबसूरती है। जब से बीजेपी ने गाजियाबाद की सीट से एक्स आर्मी चीफ को फील्ड किया है, तब से कहीं ना कहीं आर्मी को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है, जो कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि आर्मी पूरी तरीके से पॉलिटिक्स से अलग रहे, यही मुल्क की सलामती के लिए बेहतर है। कांग्रेस ने बिलाखिर बनारस से मोदी के खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मकामी एमएलए अजय रॉय को बनारस लोकसभा हल्के से टिकट दिया गया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि अजय रॉय को जमीनी सतह पर काम करने का अच्छा तजुर्बा है और वो अपने हल्के में बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं। वाज़ेह है कि बनारस से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां एक बार फिर जबरदस्त बम धमाका हुआ है। पाकिस्तान धमाके से दहल गया है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान वाक़ फ्रूट मार्केट में यह धमाका किया गया है। धमाके में कम से कम 23 अफराद हलाक हुए हैं और 40 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को PIMS अस्पताल मुंतकिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक फ्रूट बॉक्स में ये बम नस्ब किए गए थे। मार्केट में जब भीड़ बढ़ गई तो बम से यहां उड़ा दिया गया। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी भी तंजीम ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और नाज़रीन, मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वहां से सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वराई। जी सुहेल साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी खतरनाक और तशवीशनाक हालत से इसलिए गुजर रहा है कि हम ने पूरे मुल्क में और पूरी सियासी जमातों में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बना के ये फैसला किया था कि हम तालिबान के साथ पहले मुज़ाकरात का अमल शुरू करेंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मुज़ाकरात के दौरान ही ये धमाके भी जारी हैं, और इससे पहले भी एक इस्लामाबाद की कोर्ट के अंदर एक खुदकुश हमला हो चुका है, और अब ये वाकया हो गया है। और इस्लामाबाद एक नर्व सेंटर है, दारुल हुकूमत है, तो इसके असरात जो है मुज़ाकराती अमल पर भी पड़ेंगे
और पूरी कौम की नफ्सियात करें। जी सुहेल साहब, ये जानना चाहेंगे कि आज जो धमाका हुआ है, क्या किसी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल करी है और किस तरह का अफरा तफरी का माहौल वहां देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी को वहां निशाना बनाया गया है। सुबह सुबह का वक्त काफी भीड़ भी थी। आमतौर पे ये जो धमाके की जिम्मेदारी है, ये जरूरी नहीं कि फौरी तौर पर कोई कबूल करे। बाद में काफी कई 2-3 दिन बाद भी जिम्मेदारी कबूल कर ली जाती है। लेकिन जाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं कि आमतौर पर इस तरह के धमाके हमारे मजहबी शिद्दत पसंद जो है वो कर रहे हैं। बाज़ औक़ात वो तालिबान होते हैं और बाज़ औक़ात तालिबान से अलग होने वाले मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो अपना एहतजाज या अपना रद्द अमल किसी न किसी तरीके से फिर इन बम धमाकों के जरिए जाहिर करते हैं। जी सुहेल साहब, ये जानना चाहते हैं कि तालिबान से क्या किस तरह की बातचीत में पेशरफ्त हुई है या कुछ इस तरह का कुछ सामने आया है? जहां तक अभी तक जो पाकिस्तानी मीडिया में जो कुछ आया है उसके मुताबिक मुज़ाकरात के पहले मरहले में ये तय हुआ था कि नॉन कम्बैटेंट, वो लोग जो गैर जंगजू कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। और हुकूमत ने उनमें से कुछ लोग जो हैं वो रिहा भी कर दिए। लेकिन तालिबान का कहना है कि ये तो बिल्कुल गुमनाम से लोग आपने रिहा किए हैं। और दूसरी तरफ तालिबान ने अभी तक एक पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है डॉक्टर अजमल, जिनके बारे में तालिबान भी बड़ा उनका एहतराम करते हैं, अभी तक उनको भी रिहा नहीं किया गया। और जहां तक यूसुफ रजा गिलानी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो और सलमान तासीर साहब के बेटे शहबाज तासीर साहब जो कि एक्स गवर्नर थे सलमान तासीर, तो इनके दोनों बेटों के हवाले से तो उन्होंने बातचीत से ही इनकार किया है कि हम अभी इनके बारे में बातचीत भी नहीं करेंगे। तो अभी मुज़ाकरात में कोई मेजर पेशरफ्त नहीं हुई। मासवाई के तो जंग बंदी जारी थी तालिबान की तरफ से, लेकिन शायद आज उसके भी टूटने का ऐलान हो गया। जी सुहेल साहब, ईटीवी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाई जो कि बता रहे थे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो फ्रूट मार्केट में धमाका हुआ है उसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी भी तंजीम ने कबूल नहीं करी है। इसमें 23 अफराद के हलाक होने की इत्तला है और कम से कम 40 जख्मी हुए। सुबह का वक्त था, काफी भीड़ भाड़ भरा ये इलाका माना जा रहा है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर सख्त कर लिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने बताई वो यही बताई कि अभी तक किसी भी तंजीम ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। रुख करेंगे दूसरी खबरों का। ईटीवी के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा हो गया है। हैदराबाद में वाक़ रामोजी फिल्म सिटी में आज ETV 3 लॉन्च किया गया। रामोजी राव ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव के पोते सुजय बाबू ने चैनल का आगाज किया। इस चैनल का मकसद तेलंगाना के अवाम की नुमाइंदगी है। ETV चैनलों के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा हो गया है। हैदराबाद में वाक़ रामोजी फिल्म सिटी में आज ETV 3 चैनल लॉन्च किया गया। रामोजी राव ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव के पोते सुजय बाबू ने चैनल का बाज़ाब्ता आगाज किया। इस मौके पर रामोजी राव के अलावा ईनाडू के MD किरण, मार्गदर्शी की MD शैलजा किरण, डॉल्फिन्स होटल्स की MD विजयेश्वरी, रामोजी फिल्म सिटी के MD राम मोहन राव, ETV के MD बापी नीडू, ETV न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र और ETV नेटवर्क एडिटर राजेश रैना के साथ साथ दीगर ओहदेदारान और अमले के नुमाइंदे मौजूद थे। 1 क्यू పండుగ వాతావరణంలో ఈటీవీ 3 ప్రారంభమైంది ఇప్పుడే. సుమన్ గారి తనయుడు చిరంజీవి సుజయ్ బాబు తెలంగాణ ఛానల్ను లాంఛనంగా ఆవిష్కరించారు. ఆనంద కెరటాలు పొంగే ఈ ఉల్లాస వేళ ఒక్కసారి తెలుగునాట తిరుగులేని చరిత్ర సృష్టించిన ఈటీవీ ప్రస్థానాన్ని పరిశీలిద్దాం. 1995 ఆగస్టు 27 తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో ఒక కొత్త చరిత్ర ప్రారంభమైన రోజు. తెలుగులో మొట్టమొదటి 24 గంటల శాటిలైట్ ఛానల్ ఈటీవీ ప్రసారాలు మొదలైన రోజు. ప్రఖ్యాత నటి శ్రీదేవి జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేయగా
ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ రామోజీరావు ఈటీవీని తెలుగు ప్రజలకు అంకితమిచ్చిన రోజు. పత్రికా రంగంలో పెను సంచలనాలు సృష్టించిన ఈనాడు ఇప్పుడు శాటిలైట్ ప్రపంచంలో మొదటి అడుగు మోపుతోంది. తెలుగు ప్రజలకు విలువలతో కూడిన వినూత్న వినోదాన్ని అందిస్తూనే ప్రజా సమస్యల మీద ఈటీవీ కెమెరా కన్ను ఎక్కుపెడుతుంది. అవినీతి అక్రమాల్ని చెండాడుతుంది. నీతి కోసం రీతి కోసం తెలుగు జాతి ప్రగతి కోసం సర్వశక్తులు ఒడ్డి పోరాడుతుంది. ईटीवी न्यूज नेटवर्क जगदीश चंद्र ने ईटीवी 3 के इफ्तिताह पर मसर्रत का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि ये नया चैनल तेलंगाना के अवाम की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करेगा। यह खुशी की बात है कि ईटीवी के नए न्यूज चैनल का आज उद्घाटन हुआ है। ईटीवी 3 अर्थात ईटीवी तेलंगाना का उद्घाटन हुआ है। कंपनी के चेयरमैन श्री रामोजी राव ने इसका उद्घाटन किया है। तेलंगाना राज्य के निर्माण की घोषणा के बाद यह पहला चैनल है जो तेलंगाना की जनता को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता देगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष एडिटोरियल पॉलिसी देगा और कुल मिला के यह एक अच्छा और लोकप्रिय चैनल साबित होगा। सच में अगर देखा जाए तो आज से 14 साल पहले श्री रामोजी राव ने क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल खोलने का जो इरादा बनाया था, जो प्लान किया था, उसी की दिशा में यह एक और कड़ी है। मैं इस नए चैनल की सफलता की शुभकामना करता हूँ। ईटीवी 3 24 घंटों पर मुश्तमल न्यूज चैनल है। रामोजी राव ने आंध्र प्रदेश और तेलुगु अवाम की नुमाइंदगी के लिए सन 2003 में ईटीवी 2 लॉन्च किया था। तेलुगु अवाम में ईटीवी 2 को काफी मकबूलियत हासिल है। रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद रामोजी ग्रुप ने एक और चैनल की जरूरत को महसूस किया और ईटीवी 3 लॉन्च किया है। ईटीवी 3 पर तेलंगाना इलाके की खबरों को अहमियत के साथ पेश किया जाएगा। वाज़ेह हो कि हैदराबाद से नश्र होने वाले ईटीवी के मुख्तलिफ चैनलों के जरिए हिंदुस्तान में सबसे पहले इलाकाई चैनलों का तजुर्बा किया गया था और इसे मुल्क के मायानाज सहाफी रामोजी राव की दूरअंदेशी का नतीजा माना जाता है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। सहारा सरबराह सुब्रत रॉय जेल से बाहर आएंगे या मजीद अंदर रहेंगे, इसका फैसला आज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज सहारा सरबराह की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सहारा ग्रुप ने सुब्रत रॉय की जमानत के लिए 5,000 करोड़ रुपए जमा कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि मजीद 5,000 करोड़ रुपए जमानत के 3 हफ्तों के अंदर जमा कराने की यकीन दहानी कराई गई है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत उज़्मा ने सहारा ग्रुप की इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए समाअत को 9 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया था। शिया मजहबी रहनुमा कल्बे जवाद को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के खिलाफ लखनऊ के पुरानी शहर में जबरदस्त तनाव है। यहाँ पर कल्बे जवाद के हामियों ने राहुल गांधी का पुतला फूका और कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए और पुलिस पर पथराव किया। मौलाना कल्बे जवाद को दिल्ली में उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो कांग्रेस सदर दफ्तर से लगी हुई एक शिया वक्फ बोर्ड की इमारत का ताला खोलने जा रहे थे, जिसके बारे में उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उस पर कब्जा कर रखा है, जबकि कांग्रेस पार्टी इन इल्जामात से इनकार कर रही है। प्रदर्शन कर रहे थे करबला के अंदर जोरबाग में। जब वो प्रदर्शन करने के लिए निकले तो वहां के ऊपर उनको और उनके साथ 1500 आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 2 लीडरान वहां की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, अहमद पटेल और शीला दीक्षित जी। और मौलाना कल्बे जवाद साहब इसको लेकर तकरीबन 2-3 साल हो रहे हैं वहां पर बराबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अदालत के आदेश भी हो गए हैं कि वो नर्सरी खाली कर दी जाए और करबला वालों की प्रॉपर्टी से मिला दी जाए, लेकिन वहां की पुलिस ने अभी तक उसको खाली नहीं करवाया है। और अभी 31 मार्च को भी मौलाना ने प्रोटेस्ट किया था और एक ग्रुप गया था, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी उनकी और सोनिया गांधी जी ने वादा किया था कि 7 दिन में हम आपके सारे मसाइल हल कर देंगे और उस पर कब्जा दिलवाया जाएगा कोर्ट के जरिए से, पुलिस के जरिए से। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इंतखाबी मुहिम के दौरान कल भी एक शख्स ने थप्पड़ रसीद कर दिया। अरविंद केजरीवाल पर गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान ये दूसरा हमला था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर हमलों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल शुमाल मगरबी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रोड शो कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने फूल पहनाने के बाद उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया।
जिसके फौरी बाद केजरीवाल के हामियों ने उस शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने मुतल्लिका शख्स को हिरासत में ले लिया। हमलावर की शनाख्त 38 साल ऑटो ड्राइवर लाली की हैसियत से की गई और वो आउटर दिल्ली के अमन विहार इलाके का रहने वाला है। हमलावर ने ऑटो ड्राइवरों के साथ वादों को पूरा न करने का केजरीवाल हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है। अरविंद केजरीवाल पर हालिया दिनों में इस नौयत के मुतादिद हमले हो चुके हैं। 4 रोज पहले भी जुनूबी दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में एक नौजवान ने हमला किया था। इससे कबल बनारस में केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई तो गुजरात और हरियाणा में भी इन्हें निशाना बनाया गया। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि इस तरह की ओछी हरकतों से कोई क्या हासिल करना चाहता है। एक प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए इनका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? वो क्यों करवा रहे हैं? उनका मकसद क्या है? उनको क्या हासिल होगा उससे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और अगर उनको लगता है कि मुझे पिटवाने से देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है तो ये मुझे स्थान और समय बता दें, मैं वहां आ जाऊंगा, अकेला आऊंगा, मुझे पिटवा लें, जिनके पिटवा लें, अगर देश की समस्याओं का समाधान होता हो मैं अपना हाथ में उठाऊंगा। बाज गोशों से ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल हुकूमत से नाराज लोग उन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर उन पर दिल्ली के बाहर भी हमले क्यों किए गए। जिन लोगों को पकड़ा गया शायद वो कह रहे हैं वादे पूरे नहीं किए इसलिए हमला किया। तो मैं तो गुजरात गया था, गुजरात में तो हमारी सरकार नहीं थी, वहां कौन से हमने वादे पूरे नहीं किए? वहां तो बीजेपी की सरकार थी। मैं हरियाणा गया, भिवानी में मेरे पर हमला हुआ, वहां तो हमारी सरकार नहीं है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। तो कोई और करवा रहा है, स्क्रिप्ट लिख के देता है लोगों को, और वो हमले के बाद जब पकड़े जाते हैं तो वो रटी रहता है स्क्रिप्ट बोल देते हैं। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने सिक्योरिटी लेने से फिर एक मर्तबा इनकार कर दिया है। साथ ही केजरीवाल ने हमलावरों को माफ करने के अलावा अपने हामियों को अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने की तलकीन की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि बीजेपी की वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बड़ौदा से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।